with these cute and pretty झुमकास सिर्फ इसलिए मैं फर्स्ट वन हूँगी टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। जितना मर्जी खाना खाऊं और मेरा वेट ना बढ़े। मैंने पढ़ाई भी करी उस वेकेशन में। अब माय गिबली पिक्चर मुझे अब मैं सोचूं तो मुझे एम्बैरेसिंग लगता है, तब झांकती थी उसके अंदर। चुप हो जा कितना बोलेगी, चुप हो जा। वो एज अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम मैं उसको धोखा नहीं देना चाहूंगी। करण जौहर के सेट में बैठी हूँ। Guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am filming this get to know me video. So basically आज की वीडियो में I'll be sharing a little about myself and आज मैं आपको अपने बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगी so that you guys get to know me a little better and then आप मेरी वीडियो से थोड़ा better relate कर पाओ। I have seen so many of these get to know me videos on YouTube where YouTubers tell a little about themselves and जिससे viewers को उनके बारे में एक better idea होता है about how that person is, उनकी क्या hobbies हैं, क्या वो उस channel से expect कर सकते हैं। So today I am filming this video with the same aim कि मैं अपने बारे में आप सबको कुछ बताऊँ, मैं आपको ये भी बताऊँ कि आप इस channel से क्या expect कर सकते हो in the times to come and I'll be talking a little about my childhood, मेरी hobbies क्या हैं, about what I like to do in my free time and then at the end of the video we'll also play a little this and that जिसमें I'll be giving myself only two options and उसमें से I'll myself only choose that which one would I prefer. So stay tuned for that. That would be a really fun segment towards the end of the video. So let's get started with get to know me. I'll be starting up with very basic questions and then I'll be moving on to a little more fun questions and then last we'll do a this and that segment as I mentioned. So we'll start with the very basic question, which is what is your name? So my name is Shivika Mehra. The next question is what is your nickname? So my nickname is Shivi, जो मतलब मेरे नाम से ही like बनता है, which is Shivika. So Shivika से Shivi बनता है, which is the most common nickname that I have. And then I have other people in my life जो मुझे अलग-अलग nickname से बुलाते हैं. So that is a different thing. Now the next question is where do you live? So basically I live in Delhi, India. मैं एक typical Delhiite हूँ and yeah, I absolutely love staying in Delhi apart from a few things which everybody knows कि क्यों नहीं पसंद मुझे दिल्ली में रहना, but apart from that I absolutely love living in Delhi. The next question is what are the language that I speak? So when it comes to languages, my first language of course is Hindi and I belong to a हिंदू पंजाबी फैमिली. सो मतलब पंजाबी मेरे घर में थोड़ी बहुत बोली जाती है, मुझे नहीं आती, मुझे बहुत बेसिक पंजाबी समझ आती है. सो आई डू नॉट एक्चुअली कम्युनिकेट इन पंजाबी, बट अगर आप मेरे साथ बेसिक बोलोगे तो मैं टूटी फूटी मैं आपको जवाब दे दूँगी. एंड in English, I'm quite fluent in English, so that could be one of the languages that I speak. Plus, I have studied French for quite some time in my life, so मुझे थोड़ी बहुत टूटी फूटी French भी आती है. Je m'appelle Shivika, comment tu t'appelles, उस टाइप की. Like मैंने अभी बोला my name is Shivika and what is your name, so मुझे वो उतनी basic French आती है. Like मैं basic French में communicate कर सकती हूँ. Next question is a little about my family. About my family, as I mentioned, I belong to a Hindu Punjabi family and we live in Delhi. I live with my parents and as per siblings, I do not have any siblings. I am an only child. So that is quite a lot, I think, about my family. मैं नहीं बताना चाहती हूँ about my family. Next up, what is your sun sign? So I am a Capricorn. I was born in the month of December. So I am a true Capricorn. And literally like जितने भी आप Google में Capricorn woman के बारे में traits पढ़ते हो वो सब मेरे में है. मतलब I am 100% Capricorn. So yeah, so that is about my sun sign. Now some very basic questions. What is my favorite color? Currently, I'm obsessed with the color purple. Of course, my all-time favorite color is pink. But abhi at the moment, I am obsessed with the color purple. So everything around me that you see, like everything that I'm using, agar ho sakta to I would want to use it in the color purple. I love the color purple right now. My favorite music, I do not have a very बहुत नीश चॉइस नहीं है मेरे म्यूज़िक की. मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही आर्टिस्ट सुनना पसंद है या मुझे एक ही लाइक एल्बम का क्रेज़ है या
मतलब एक ही जॉनर में सुनती हूँ ऐसा नहीं है. बट इफ आई जस्ट आंसर द क्वेश्चन, एक लाइक टू गिव यू अ ब्रॉडर आंसर टू द क्वेश्चन, बॉलीवुड के गाने मुझे सुनना पसंद है. आई एम अ हार्ड कोर फैन ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक. सो या माई यूट्यूब नेम, सो मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है सिंपली शिविका. एंड टू टेल यू अ लिटिल अबाउट इट, तो बेसिकली उस नाम लाइक द चैनल का जो नाम है उसमें मेरा नाम आता है ऑफ कोर्स शिविका. बट व्हाई हैव आई चोजन द नेम सिंपली शिविका फॉर माई चैनल इज बिकॉज the first thing is that in my channel I am being completely original with you guys, like I am being completely myself. So that was I think the sole reason कि मैंने बोला कि I'll like pick the name Simply Shivika for my channel. So yeah, so that is the name of my channel and that is the reason why I chose that name. The next question is inspiration to start YouTube. So basically I have been someone जो बचपन से बहुत ही एक shy introvert kid रही है. And you know I have always been someone जो बहुत ज़्यादा publicly interact करने से पहले like थोड़ा सा like हिचकिचाती है. But at the same time I have been someone who has been really creative. And जब भी मुझे अपनी creative side को use पे लाना होता है, that time my introvert side really takes a back seat. So that was I think one of the sole reasons, because मुझे लगा that YouTube will be a great platform to showcase my creative side to you guys. So that is the sole reason कि मैंने YouTube channel शुरू करा. The next question is what can we expect from your YouTube channel? So as I mentioned in my introductory video, I will be making all type of fun, exciting, informative videos. तो मैं एक किसी particular niche पे या किसी particular genre की videos नहीं बनाऊंगी. I'll be trying to make every possible kind of fun video that I can shoot for you guys. So you will see चैलेंज वीडियोस, व्लॉग्स फ्रॉम लंदन. मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस लंदन में कैसे थे उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी. इफ एनीबडी ऑफ यू इज प्लानिंग टू गो टू लंदन, या कभी आप अपने मास्टर्स करने का या कभी आप अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हो टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, तो उससे रिलेटेड आई विल बी ड्रॉपिंग सम वीडियोज़. ऑफकोर्स आई विल बी ड्रॉपिंग अ लॉट ऑफ शॉपिंग हॉल वीडियोज़. आई लव शॉपिंग, तो मैं उसकी बहुत सारी वीडियोज़ आप सबके लिए लाऊंगी. And I'll also be filming a lot of cooking videos जहाँ recipes try करूँगी, new recipes cook करूँगी and काफ़ी ज़्यादा fun, cute, aesthetic videos मैं बनाने की कोशिश करूँगी all in all. So I would really request you guys to please subscribe to my channel. Plus I would also like to tell to you guys कि मैं अपने हर वीडियो के एंड में ये बोलती हूँ that please drop in your video ideas. तो वो भी आप drop in कर देना अगर आपके कोई भी वीडियो आइडियाज़ है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ as a new content creator. So please let me know and I'll definitely try to work on those. Next up is my education. Basic education is मैंने humanities ली थी in class 11-12. So that is my basic education. Post which I did law. तो मैंने लॉ किया है फ्रॉम एमिटी लॉ स्कूल नोएडा एंड आई डिड BA LLB ऑनर्स. पोस्ट विच आई वेंट फॉर माई मास्टर्स टू लंडन एंड मैंने अपना मास्टर्स करा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फ्रॉम क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन. And now I am back to India again, and yeah, so that is it about my education. Now the next question is what is your favorite holiday destination? I have been to quite a lot of places in India and abroad. तो अगर मैं इंडिया में बोलूँ so I absolutely love जयपुर. मुझे जयपुर बहुत पसंद है. आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है तो वो आइडियल प्लेस नहीं है टू यू नो गो टू ऑल अराउंड द ईयर. बट वेन एवर इट इज़ अ लिटिल कूल एंड जब थोड़ी सी सर्दियाँ पड़ती है सो जयपुर इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट. आई एब्सोल्युटली लव जयपुर. हिल स्टेशन में टिपिकल शिमला मुझे बहुत पसंद है बट जयपुर टॉप्स द लिस्ट फॉर मी. अब्रॉड की अगर मैं बात करूँ आई एम अ फैन ऑफ लंडन. मतलब मैं लंडन रही भी हूँ फॉर क्वाइट सम टाइम बिकॉज ऑफ माई मास्टर्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द सोल रीजन्स. आई एब्सोल्युटली लव लंडन. तो लंडन को कोई बीट नहीं कर सकता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एब्सोल्युटली लव एम्स्टरडैम. मतलब अगर आप में से किसी ने कभी एम्स्टरडैम विजिट नहीं करा या आप कभी सोच रहे हो कि मैं
कहाँ विजिट करूँ, तो प्लीज़ 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 डू विजिट एम्स्टर्डम। वो एक बहुत लाइक इट इज़ सच अ नाइस एंड सच अ काम एंड पीसफुल सिटी। लाइक वो वैसी सिटी है जो टिपिकली यू फील लाइक इट इज़ अ सिटी स्ट्रेट आउट ऑफ अ फेरी टेल। आई विजिटेड इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिसमस, तो वो भी रीज़न था कि स्ट्रीट्स वगैरह बहुत डेकोरेटेड थी, बट आई लव्ड एम्स्टर्डम। मतलब मुझे अगर मौका मिले तो आई वुड रियली लाइक टू विजिट एम्स्टर्डम वंस अगेन इन माई लाइफ। Next, how many friends do you have in life? I'm not someone जिसके बहुत सारे friends हैं. I am not someone जिसका बहुत बड़ा social circle है. I am not that. But I have 3-4 friends in my life जिनकी मैं बहुत कदर करती हूँ, जिनको मैं बहुत value करती हूँ. And I'm so lucky that I have them in my life. And and मतलब उन लोगों की वजह से मुझे ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप पता है। एंड मुझे अभी भी आजकल के टाइम में भी लाइक आजकल का जो ज़माना है हम सबको पता है, उस ज़माने में भी मेरा इन 3-4 लोगों की फ्रेंडशिप्स की वजह से मेरा ट्रस्ट है ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप। सो या आई जस्ट हैव 3-4 फ्रेंड्स, सम आई हैव फ्रॉम university, and मेरी एक स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है। सो these are the only friends that I have in my life and I am very happy with them. Next up, the hobbies. I am someone who has been a very studious and उस तरह की लड़की रही हूँ मैं शुरू से, जिसको बहुत ज़्यादा like I've always been inclined towards study a lot more than any other thing in my life, I feel. But apart from studying, of course study मेरी hobby नहीं है, वो मुझे करना पड़ता था तो मैं करती थी, तो that is not my hobby of course. But apart from studying and जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई से मिलता था, I love पेंटिंग। मतलब मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आई लव पेंटिंग, आई लव वॉचिंग टेलीविजन, आई लव टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, हैंगिंग आउट विद माई फैमिली। तो वो बेसिक हॉबीज़ है मेरी। अब मुझे रिसेंटली थोड़ी बेकिंग की हॉबी डेवलप हो रही है, तो आई ऑल्सो लव बेकिंग बिकॉज मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो मैं बेकिंग का मतलब मैंने वो अपनी हॉबी बना ली है कि चलो उसी बहाने कुछ मीठा बनेगा और मुझे खाने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अप, व्हाट इज़ योर फेवरेट कार्टून? I have been a fan of all the cartoons that I think जो हर 90s का बच्चा fan रहा होगा. Like I am a typical 90s kid, तो I have been a fan of a lot many cartoons यार. मतलब I love also. I think मुझे अभी भी वो cartoons पसंद है. I love Noddy, Oswald, शिनचैन तो आई थिंक सबका ही फेवरेट है। मतलब वो इतना ज़्यादा नॉटी और क्यूट है कि मतलब दैट इज़ लाइक एन ऑल टाइम फेवरेट काइंड ऑफ थिंग। सो ऐसा आई थिंक ये 2-3 कार्टून तो मुझे बहुत ही पसंद है। आई रिमेंबर जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, अब तो मुझे कभी कभार अगर मैं कभी वो चला लेती हूँ तो मुझे लगता है मैं ये देख भी कैसे लेती थी, इतना बोरिंग है। बट तब आई रियली यूज टू लव टेलीटबीज। मतलब आई डोंट नो आप में से कितनों ने देखा होगा, बट आई वॉज अ फैन ऑफ टेलीटबीज यार। मतलब मुझे इतना पसंद था ना देखना कि अभी भी मम्मा मुझे बताती है कि जब तक टेलीटबीज नहीं चलता था टीवी पे तब तक मैं खाना नहीं खाती थी। तो मतलब मैं उस लेवल की फैन थी टेलीटबीज की। सो दैट आर माई फेवरेट कार्टून। आई थिंक टिल डेट ऑल्सो आई लव ऑल दीज कार्टून्स। नेक्स्ट अप, व्हाट इज योर फेवरेट टीवी शो? आई एम नॉट अ फैन ऑफ सीरियल्स। मतलब वो सास बहू ड्रामा और वो तो आई कांट स्टैंड, बट आई लव तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आई एम अ फैन ऑफ दैट शो। मतलब मुझे उसके हर एपिसोड का हर डायलॉग और मतलब मुझे हर छोटी छोटी वो मोमेंट्स भी, अब क्या होने लगे एपिसोड में, मुझे वो भी पसंद है। बट मैं फिर भी लूप पे उसके एपिसोड देख सकती हूँ। आई लव वॉचिंग इट। जब भी मैं लंच डिनर कर रही होती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, और मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट इवन बॉदर लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स दैट हैव कम अप ऑन एनी OTT प्लेटफॉर्म या टीवी पे नया क्या है। आई जस्ट स्ट्रेट अप सर्च तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऑन यूट्यूब एंड आई एम लाइक चला दो। मतलब आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा एपिसोड है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो मैंने नहीं देखा है। एंड टू मेंशन, आई एम दैट पर्सन जो उसके पुराने एपिसोड देखते हैं। मतलब नए वाले तो चलो अब थोड़े बोरिंग हो गए हैं, बट पुराने एपिसोड्स आर सो हिलेरियस, सो फन। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज माई ऑल टाइम फेवरेट। आई नो अ लॉट ऑफ यू आर ऑल्सो उसके फैंस, सो प्लीज कमेंट डाउन अ ब्लू हार्ट इफ यू ऑल्सो लव दैट। Next up, what is my most used app? I use WhatsApp, Instagram and YouTube a lot. मतलब I think ये mainly ये 3 ही apps है जो मैं use करती हूँ अब, because I am becoming that new content creator. मुझे editing करनी होती है वो सब, तो I use a lot of editing apps because of that reason. But main ये 2-3 apps ही होती है जो मैं use करती हूँ।
Next up, do I have any tattoos? No, I do not have any tattoos. I am not a big fan of tattoos per se. मतलब मुझे बहुत पसंद भी नहीं है tattoos वगैरह. तो नहीं, मेरे पास like I do not have any tattoos on my body and I would never want to get a tattoo in my life. And do I have any piercings? अपार्ट फ्रॉम मेरे जो ईयर में पियर्सिंग है उसके अलावा मेरे पास कोई पियर्सिंग नहीं है, मुझे शौक भी नहीं है. मैंने ये भी सिर्फ करवाई है बिकॉज यू नो देन आई गेट द चांस टू वेयर दीज क्यूट एंड प्रिटी झुमकास. सिर्फ इसलिए, मुझे बिल्कुल और कहीं पियर्सिंग करवाने का कोई शौक नहीं है. नेक्स्ट अप, डू आई हैव एनी पेट्स? नो, आई डू नॉट हैव एनी पेट्स. आई लव डॉग्स. मतलब मुझे डर भी लगता है बट मुझे एट द सेम टाइम बहुत क्यूट भी लगते हैं. तो मैं उस टाइप की इंसान हूँ कि अगर मुझे कोई स्ट्रीट डॉग दिखता है तो मैं फर्स्ट वन होंगी टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस. बट इफ आई एम सिटिंग इन माई कार एंड देन मुझे कोई बहुत क्यूट सा डॉग दिखता है तो आई विल बी लाइक ओ ये कितना क्यूट है. मैं उस तरीके की डॉग लवर हूँ. एंड या सो व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल आई हैड अ डॉग जो बहुत टाइम हमारे साथ रहा नहीं था. बट आई डिड हैव अ डॉग फॉर आई थिंक फॉर अ मंथ एज फार एज आई रिमेंबर. मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज वेरी स्मॉल. आई हैड अ लैब्राडोर देन. नेक्स्ट अप, व्हाट इज़ माई फेवरेट अटायर? आई लव वेयरिंग शर्ट एंड जीन्स. बहुत कम्फी रहती हूँ मैं, बहुत यू नो आई फील सो रिलैक्स्ड एंड ऑल ऑफ दैट एंड दैट. सो आई लव, टिपिकली मैं यूजुअली आपको जीन्स शर्ट में ही दिखूंगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव वेयरिंग कुर्तीज. या दैट इज़ द एंड आई लव वेयरिंग कॉर्ड सेट्स. मुझे वो बहुत पसंद है बिकॉज उसमें फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ता किस चीज़ को किससे मैच करो. सो या, सो दैट इज अनदर attire that I love wearing. Next up, if I had a superpower, what would it be? I think मैं बहुत ही कोई वो इंटेलेक्चुअल जवाब नहीं देना चाहती. मैं बहुत सिंपल जवाब देती हूँ आपको कि मैं जितना मर्जी खाना खाऊं और मेरा वेट ना बढ़े. दैट इज़ द ओनली सुपर पावर दैट आई वांट इन माई लाइफ. कि मैं मतलब बिकॉज आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मीठा खाना इतना ज़्यादा पसंद है ना, बट आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ कि नहीं इतना भी नहीं खाना यार. सो आई थिंक दैट इज़ माई ओनली विश इन लाइफ कि मैं जितना मर्जी खा लूँ बट मेरा वेट ना बढ़े. सो दैट इज़ द सुपर पावर दैट आई रियली वॉन्ट. डू आई हैव अ टैलेंट? I think the only talent that I can talk about जो मुझे अभी instantly याद आ रहा है is that अदरवाइज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन एज आई मैंशन. बट जब भी मुझे कोई ऐसा टास्क दे दिया जाता है या जब भी मुझे कोई ऐसा काम दे दिया जाता है जो मुझे बहुत प्रोफेशनल होता है, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, कभी मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कभी मुझे सीरियसली किसी से बात करनी है लाइक इन अ वेरी प्रोफेशनल सेटिंग, तो तब मेरा इंट्रोवर्ट साइड थोड़ा बैक सीट ले लेता है. देन आई बिकम दैट वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. तो आई थिंक वो जो स्विच मैं करती हूँ ना, सो आई थिंक दैट इज माई टैलेंट कि उस टाइम पे व्हेन आई नो दैट आई हैव टू बी एक्टिव आई डू नॉट टेक अ बैक सीट. सो आई थिंक दैट इज अ टैलेंट इफ आई मे सो कॉल इट. My last vacation, I'll call it a vacation that जब मैं मास्टर्स करने अपने लंदन गई थी. So if you consider that a vacation, तो वो एक मेरी वेकेशन थी जो मैंने करी. मैंने पढ़ाई भी करी उस वेकेशन में. अब आप उसको ये मत सोचना कि वेकेशन करने गई थी, मैंने पढ़ाई भी करी उस वेकेशन में. सो दैट could be an answer. But apart from that, अगर आप इसको कंसिडर नहीं करते हो, बिकॉज ये मैं पढ़ने गई थी गाइज लंदन, तो अगर आप उसको कंसिडर नहीं करते तो आई थिंक द लास्ट vacation that I went for was to Spain. I went to Spain with my family. So yeah, so that was my last vacation. Next up, which phone do I use and what is your current wallpaper? So I am currently using an iPhone 14 Pro Max and my current wallpaper is my Ghibli picture जो मैंने so that is my Ghibli picture जो मैंने अभी अपना wallpaper बना रखा है. What is your favorite sport? As a child I loved playing lawn tennis. मतलब मुझे lawn tennis खेलना इतना ज़्यादा पसंद था. But I think as I have grown older, अब मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है. आई स्टिल लव लॉन टेनिस बट मुझे वो खेलने का बहुत टाइम से अवसर प्राप्त नहीं हुआ है. सो लॉन टेनिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स. सेकेंड इज डेफिनेटली बैडमिंटन. आई लव प्लेइंग बैडमिंटन. सो या, सो दैट आर माई फेवरेट स्पोर्ट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अबाउट वन ऑफ योर एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड मेमोरीज. पता है मुझे ये एक ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी है जो मुझे अब मैं सोचूं तो मुझे एम्बैरेसिंग लगता है. तब तो आई वॉज लाइक, तब दैट वाज अ जेन्युइन क्वेश्चन फॉर मी, पता है. सो अब तो वो यू नो टिपिकल स्लीक एलईडी टीवीज आ गए हैं एंड वो, बट जब हम छोटे थे तब वो प्रॉपर डिब्बे वाले टीवी आते थे, लाइक अ प्रॉपर बॉक्स टीवी, राइट. एंड उसके पीछे
आई रिमेंबर उसके पीछे बहुत छोटे 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 होल्स होते थे, जिसमें ऑफ कोर्स टीवी का पूरा सिस्टम होता था। एक लॉजिकल इंसान को ये चीज़ पता है कि उसके अंदर वो टीवी के सारे पार्ट्स हैं और वो सारे उसके चीज़ें लगी हुई हैं। बट वट आई यूज टू थिंक, एंड I feel so embarrassed to admit this on camera today, and मतलब मुझे अभी भी सोच के लाइक बहुत वो चीज़ क्यूट लगती है कि यार मैं इतनी भोली थी उस टाइम पे। तो मुझे पता क्या लगता था कि वो जो होल्स है एंड वो जो पूरा एक बॉक्स है टीवी का, उसके अंदर लोग रहते हैं। लाइक आप मान लो कि आपने कोई सीरियल देख रही हो, ठीक है, तो उसमें जितने भी एक्टर्स हैं वो मुझे लगता था वो उस बॉक्स के पीछे रहते हैं एंड वो वहाँ से एक्ट कर रहे हैं, तो मुझे टीवी पे दिख रहा है। एंड लिटरली लाइक आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, देयर हैव बीन टाइम्स, एंड ये तो मुझे क्लियरली याद भी है। मतलब अब मुझे मेरे पेरेंट्स भी बताते हैं कि यार तू ये क्या क्वेश्चन पूछती थी कि लोग कैसे रहते हैं टीवी के अंदर, बट दिस इज समथिंग दैट आई क्लियरली रिमेंबर कि जब कोई होता नहीं था ना आसपास, पता मैं क्या करती थी, वो जो छोटे छोटे होल्स होते थे उस टीवी के पीछे, मैं ना अंदर जाके ऐसे झांकती थी उसके अंदर तो सी कि लोग कहाँ हैं, एंड आई कुड नेवर स्पॉट पीपल। और मुझे लगता था ये लोग कहाँ रह रहे हैं और ये इतने सारे लोग टीवी के अंदर कैसे रह रहे हैं यार, और वो शूट भी करते हैं और वो, तो मतलब मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा, आई डोंट नो, आई वाज सो स्टूपिड एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे वो लगता था, अंटिल वन फाइन डे माई ब्रेन स्टार्टेड फंक्शनिंग इन अ प्रॉपर मैनर एंड आई रियलाइज कि ऐसा नहीं होता है कि लोग टीवी के अंदर रह रहे होते हैं। सो यू नो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मेमोरीज जो मैं सोच सकती हूँ। एंड मुझे लगता है कि यार ये चीज़, मतलब मेरे पेरेंट्स भी सोचते होंगे क्या कि इसको डांटें या क्या करें इसके साथ, मतलब ये इतनी क्या पूछ रही है हमसे। सो या, सो दैट इज अ वेरी एम्बैरेसिंग memory that I can think of. Now we will be doing this or that segment. So I'll be popping up questions on the screen, and then I'll be choosing as to what would I prefer. Tea. आई एम अ टी पर्सन, मतलब मुझे चाय ही पसंद है। कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ वंस इन अ वाइल, ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक कॉफ़ी। ऑफ कोर्स जब नींद भगानी होती है और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तब कॉफ़ी काम आती है, बट आई एम अ चाय पर्सन। लाइक आई लव ड्रिंकिंग माई टी, कितनी भी गर्मी हो, 50 डिग्री भी टेम्परेचर हो, चाय तो मुझे चाहिए। तो आई एम अ चाय पर्सन दैट वे। I think I'm an introvert for most of the times in my life. मैं introvert ही हूँ, but I think with the closest people I am an extrovert. So I'll say I'm an ambivert kind of a person. कि मैं जब एक social setting में आपसे मिलूंगी तो आपको लगेगा कि introvert है, but once you get to know me you will be like भाई चुप हो जा, कितना बोलेगी, चुप हो जा। So yeah. Next up, I am very emotional, I'd say. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई एम प्रैक्टिकल, आई एम वेरी इमोशनल। प्रैक्टिकल मैं हो जाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशनल फूल ही हूँ, मतलब कुछ और देखती ही नहीं हूँ। बट आई थिंक इमोशंस जब ओवर पावर करते हैं तो फिर मैं इमोशंस देख रही होती हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी टेक्स अ बैक सीट फॉर मी, which I don't know if it's a right thing आजकल के टाइम में या नहीं, but I am like that and I can't change that about myself. I am a night owl. I cannot, मतलब ये अभी भी मैं वीडियो रात को ही बना रही हूँ, मतलब मुझसे सुबह नहीं उठा जाता यार। और अभी भी पता है there was a post on Instagram, I think आप सब में से बहुत लोगों ने देखा होगा, कि I still can't believe कि वो एक दौर था मेरी ज़िंदगी में जब मैं 8 बजे से पहले, जब स्कूल टाइम था तब मैं 8 बजे से पहले उठ के ब्रेकफास्ट करके तैयार होके अपना फेवरेट कार्टून देख के मतलब अपने गेम्स के साथ खेल के स्कूल पहुंच भी जाती थी, एंड आई वाज सो एक्टिव। और मैं सोचती हूँ हाँ यार, मैं वो भी इंसान थी किसी ज़माने में, बट अब आई कैन नॉट, मतलब आई एम अ नाइट आउल। आई थिंक आई लव बेकिंग मोर देन कुकिंग, ऑफ कोर्स, बिकॉज एज आई मेंशन मेरा स्वीट टूथ है, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। तो आई थिंक आई गो फॉर बेकिंग, बिकॉज उसमें थोड़ा फन एलिमेंट फिर भी रहता है। कुकिंग थोड़ी रिडंडेंट हो जाती है आफ्टर, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट आई थिंक आई गो फॉर बेकिंग। आई एम अ स्पेंड थ्रिफ्ट। आई लव स्पेंडिंग मनी यार, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ extravagant person,
मतलब मैं फूलिश चीज़ों में अपना पैसा स्पेंड नहीं करती हूँ. आई ऑफ कोर्स लाइक टू स्पेंड माई मनी ऑन समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी. ऐसा नहीं है कि कुछ भी खरीद रही हूँ मार्केट से और वो मेरे घर में बस पड़ा हुआ है, नहीं वो नहीं है. बट आई डू लाइक शॉपिंग. So yeah, and because of that, please stay tuned for a lot of shopping haul videos that will be coming your way. तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. बीच बीच में प्रमोशन करती रहनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट अप, this I have already answered. I love dogs. I am a dog person. I do not really like cats. मतलब मुझे उनको देख के इतना प्यार नहीं आता है, तो या आई एम अ डॉग पर्सन. आई लव बॉलीवुड. मतलब मुझे ये लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब कुछ तो बता तुझे जो हॉलीवुड में पसंद है, कोई एक फिल्म तो बता जो हॉलीवुड की पसंद है. आई डू नॉट हैव एन आंसर फॉर दैट. आई मतलब मैं वंस इन अ वाइल कोई वेब सीरीज या कोई सीरीज देख लेती हूँ इंग्लिश, वो मुझे नहीं है. बट जो मज़ा मुझे बॉलीवुड देखने में आता है ना, वो कोई हॉलीवुड मूवी देख के नहीं आता. आई थिंक आई कॉन्ट चूज बिटवीन बुक्स एंड मूवीज. आई लव रीडिंग, तो वो मैं चूज नहीं कर सकती हूँ. आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन माई मूड यार. मतलब अगर मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है तो आई जस्ट वॉच मूवी, मतलब जिसमें मुझे पढ़ना नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट. बट देर आर डेज व्हेन आई जस्ट लाइक टू रीड. सो इट रियली डिपेंड्स. बट अगर चूज करना आई गो फॉर मूवीज. चलो ठीक है. आई लव विंटर्स. आई कांट स्टैंड समर्स. मतलब मैं लंदन में 1-1.5 साल इतनी खुश थी, चाहे मैं बहुत परेशान थी बारिशों की वजह से और भी बहुत चीज़ों की वजह से, पढ़ाई की वजह से. बट आई रियली लव द वेदर ऑफ लंदन यार. मतलब आई एब्सोल्युटली लव लंदन उस वे में कि उसकी ठंड जो है ना इज़ वाओ. सो आई लव विंटर्स. थैंक गॉड मैं विंटर्स में बॉर्न हुई हूँ यार, बिकॉज बर्थडे फिर गर्मियों में मनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई लव स्पाइसी फूड. मतलब मैं उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद है. मुझे बहुत पसंद है स्पाइसी फूड. बट मीठे को कोई नहीं बीट कर सकता. आई एम अ हार्ड कोर लवर फॉर स्वीट्स एंड डिजर्ट्स. सो आई विल गो फॉर स्वीट्स. मैं उसको धोखा नहीं देना चाहूँगी. I'd say I am a very organized person. मतलब मैं अनऑर्गेनाइज तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ इन माई ओपिनियन. ऑफकोर्स छोटू मोटू चीज़ें, छोटू मोटू इधर उधर कुछ रह जाता है, वो एक अलग बात है. बट मैं अनऑर्गेनाइज तो कहीं से भी नहीं हूँ. सो आई थिंक आई एम एन ऑर्गेनाइज पर्सन एंड आई लाइक टू कीप माई थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड. स्पेशली जब मेरी नोट्स वगैरह होते हैं या मेरा कोई वर्क रिलेटेड सामान होता है तो उससे रिलेटेड तो मैं बहुत ऑर्गेनाइज रहती हूँ. आई वुड लाइक टू से नो मेकअप. आई एम नॉट समझ जिसको बहुत मेकअप करना पसंद है. मैं करती भी नहीं हूँ. आई डोंट रियली लाइक इट. मुझे आता भी नहीं है करना. मतलब मुझे आज के डेट में भी अपना राइट शेड ऑफ फाउंडेशन और वो नहीं पता. तो आई एम नॉट समवन हु लाइक्स डूइंग अ लॉट ऑफ मेकअप. नो. आई थिंक आई वुड गो फॉर लॉन्ग हेयर. आइड से मतलब मुझे शॉर्ट हेयर तो बिल्कुल नहीं पसंद. मीडियम साइज टू लॉन्ग हेयर आप कह सकते हो कि मुझे पसंद है. बिकॉज यू नो आई हैव गॉट रियली फ्रिजी हेयर. तो वो फ्रिजी और बहुत थिक बाल है मेरे, तो वो जब शॉर्ट हो जाते हैं तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू टेम दैम. तो शॉर्ट हेयर तो नहीं, बट आई से मीडियम टू लॉन्ग हेयर आई रियली लाइक. इंडोर स्पोर्ट्स या आउटडोर स्पोर्ट्स में आई वुड से आई लव आउटडोर स्पोर्ट्स. मौसम थोड़ा अच्छा होना चाहिए. सो आउटडोर स्पोर्ट्स में आई लव लॉन टेनिस एंड बैडमिंटन. इंडोर का मुझे ऐसा कोई स्पोर्ट्स इतना पसंद है नहीं. सो आई वुड जस्ट गो फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स. वो गेम और वो कार्ड गेम्स और वो सब को मैं स्पोर्ट्स नहीं मानती. तो आई वुड गो फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स. या आई थिंक आई वुड गो फॉर वेकेशन अब्रॉड. मतलब अगर मैं प्रॉपर वेकेशन कर रही हूँ तो मैं बाहर वेकेशन करना चाहूँगी. मतलब आई वुड लाइक टू गो आउट एंड एक्सप्लोर डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट कल्चर्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझे बहुत कोई छोटा ब्रेक मिलता है तो आई वुड लाइक टू रोम अराउंड इन इंडिया. बिकॉज मैंने इंडिया कितना ही एक्सप्लोर किया अब तक. सो आई डोंट माइंड एक्सप्लोरिंग इंडिया. So that was it for this and that. I hope you had fun. I had a lot of fun. मतलब मुझे बिल्कुल वो कारण जोहर के सेट पे मैं बैठी हूँ वैसी वाइब्स आ रही थी. So I had a lot of fun filming this video. The last question जिससे मैं वीडियो एंड करना चाहूँगी is that
why should you guys subscribe to my channel? So I am someone, I think बहुत ज़्यादा I'm just like a girl जिससे आप बहुत relate कर पाओगे. There's no pretense, there's no मैं कुछ फेक नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. एंड आई थिंक आपको मेरी वीडियोस देखने में बहुत मजा आएगा, आपको बहुत रिलेटेबल लगेंगी मेरी वीडियोस. द मेन थिंग इज दैट यू विल बी एबल टू आप रेजोनेट कर पाओगे मुझसे बहुत ज़्यादा. एंड यू विल बी एबल टू फील कि आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं है. मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस वैसे ही बनाने की कोशिश करूँगी. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो. बिकॉज अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तभी मुझे और फन एंड एक्साइटिंग वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा और मैं उसके टूवर्ड्स मोटिवेट होंगी. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ शो ऑल द पॉसिबल लव. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. प्लीज़ टेल देम टू सब्सक्राइब एज वेल. शो देयर लव. आई बी सो ग्रेटफुल. एंड अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगी और आपके मन का डाउट क्लियर करना चाहूँगी अपने बारे में. सो प्लीज़ ड्रॉप एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन द कमेंट्स डाउन बिलो. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Please keep watching me, please keep loving me, and please take care of yourselves. I'll see you guys super soon in the upcoming videos. Bye bye, love you guys.